نور حسن ڈرائیور، تمہارے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے، اس لیے تمہیں ہر وقت گندگی نظر آتی ہے چاروں طرف۔ مفتی انس صاحب نے بہت بہترین اور بہت ثواب کا کام کیا ہے۔ جو ایسی لڑکی سے شادی کر کے ایسی لڑکی سے شادی کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ تم لوگوں کے دماغ میں گوبر بھرا ہے تو تمہیں گوبر نظر آتا ہے، چاروں طرف گندگی نظر آتی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تمہاری غلطی نہیں ہے بھائی یہ۔ ہلو ہلو جی، جی، نور حسن صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ یہ حرکتوں سے توبہ کریں گے آپ؟ نہیں کریں گے؟ یوٹیوب پہ چینل پر ڈال دیتے ہیں لوگوں کی۔ جناب، دیوبندیوں کے کفر کو دکھانا میرا کام ہے۔ یار کہاں ڈوبے پڑے ہو تم؟ کیا میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ دیوبندیوں کو آگے نیچے آگے دکھانا میرا کام ہے؟ آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ کچھ نہیں ہوتا۔ دیوبندی بریلویت الحمدللہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور دیوبند بڑھتی جا رہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، کفر تو بڑھے گا نا، تبھی تو حضرت کہاں تمہاری عیسیٰ سوچ علیہ ہے؟ السلام کیسی سوچ حضرت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ارے نور حسن صاحب، کنویں سے نکل کے تھوڑا باہر دیکھو، سمندر بہت بڑا الحمدللہ، آپ دیکھو باہر نکل کے بریلیت میں مت ڈوبے رہو میرے بھائی۔ میں نے تمہیں ایک دفعہ اور کال کری تھی، تم نے میرا یوٹیوب پہ ڈال دیا، اور ہو سکتا ہے یہ بھی ڈال دو، خیر یہ بھی لیکن پڑے گا۔ میرے بھائی اس سے کچھ ٹینشن کیوں فائدہ لیتے نہیں ہو؟ ہے۔ ٹینشن کیوں کوئی بات لیتے ہو؟ نہیں، یہ ڈال بھی دینا، پڑے گا۔ لیکن ایسی حرکتوں سے کچھ دیکھیے، فائدہ نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، ٹھیک ہے، آپ کی جماعت کے ایک صاحب نے، جناب نے اپنے تھانوی جی کو کافر ثابت کر دیا۔ ارے کیا یار، تم حقیقت میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھچائی میں لگے پڑے ہو، کافر ثابت کر یہی دیا۔ تو آپ کو برداشت تم نہیں ہوتا دونوں کہ کے یہ نور کافر حسن کہنے کرتا سے کیا ہے۔ تم دونوں کے کہنے سے وہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کافر ہو گئے کیا تمہارے کہنے دیکھیے سے؟ آپ کو، اچھا آپ کو میرا ہی چینل دکھتا ہے، کسی اور کا چینل نہیں دکھتا؟ چینل تمہارا یوں دکھتا ہے، تم اس پر اتنی میں خطرناک کفر طریقے دکھاتا سے ہوں، اس لیے ٹائٹل لکھتے ہو۔ میں کفر نہیں دکھاتے بھائی، میں گندی آپ ہی حرکت کی کرتے ہو۔ زبانوں، ٹائٹل سن تو لو یار، میرے بات سن تو لو۔ آپ ٹائٹل لوگوں کی، آپ اتنا گندا لکھتے ہو، باقی اس کو پورے غیر بھی سنتے ہیں، سب سنتے ہیں۔ آپ لوگوں کی زبان سے میں آپ لوگوں کے اکابرین کو کافر ثابت کرا دیتا ہوں، یہی آپ کو ہضم نہیں ہوتا نا؟ ارے یار، عبارتوں سے کوئی کافر اگر ہونے لگا تو احمد رضا کی اتنی عبارتیں ہیں گستاخانہ، تم اس کو تو مانتے نہیں ہو۔ دنیا دیوبندیت میں مسئلہ کسی عورت دکھتا نے ہے۔ ایسا بچہ ہی پیدا نہیں کیا ہے ارے جو اعلیٰ تیری حضرت یہی کو تو کافر بھول ہے ثابت نور کرتے۔ حسن۔ ابے نور حسن، تیری یہی بھول ہے کہ تو بس کسی نے میدان میں بچہ نکل نہیں کے جانا۔ لاؤ اپنے کسی عالم کو میدان میں نکال کے، ابے میرے بھائی، تو عالم تو ہے نہیں، لاؤ جاہل ہے، کسی تو عالم کو جاہلانہ نکال کے، سوال کرتا ہے سب سے۔ تو میدان میں لاؤ کسی کو کیوں نکال کرتا کے۔ ہے ایسی؟ ابے میدان میں آ کے کرے گا کیا؟ تیرے کہنے سے کوئی کافر ہو جائے گا کیا؟ لیکن ایسی حرکتیں اچھا، مت کرا بکواس کر۔ کیوں کرتے ہو؟ تو اگر بکواس کیوں کہے گا، کرتے ہو؟ سن میری بکواس بات، کیوں اگر کرتے تو ہو؟ کہے گا تم کہ کو احمد ہضم نہیں رضا ہوتا؟ جی ارے سن تو لے اب۔ ہضم نہیں ہوتی یہ بات؟ دیکھو، ہضم بدتمیزی ہوتی ہے، بالکل سن مت تو کرنا، لے۔ بدتمیزی میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہمیں پتا ہے میرے ادب سے بھائی، بات تو کرو گے، جاہل ہے، تو بدتمیزی پر ادب نمبر سے ایک ہے، بات مجھے کرو پتا گے، ہے۔ ادب سے بات کروں گا، بدتمیزی سے بات کرو میں گے نے تو تجھے ابھی بچی گالی نہیں چھیڑ دوں بکی، گا۔ تجھے میں نے بھی گالی نہیں بکی، تجھے غلط نہیں کہا میں نے، کچھ کہا تو بتا۔ تو تو بزرگوں لیکن کی میری طرف بات بھاگ یہ رہا ہے نا، سن، بدتمیزی کر اگر رہا ہے۔ رہا سن تو لے، اگر گستاخانے کی بات رہی تو میں 100 عبارتیں تیری احمد رضا کی بھیج سکتا ہوں جس نے گستاخی کی ہے۔ تو ثابت میرے کرو، بھائی ان ابھی چیزوں ثابت کے کرو، اندر مت پڑ تو۔ ابھی ثابت کرو، ابے ابھی فون پہ کیا ثابت کروں تجھے بتا۔ کرو کرو کرو۔ تیرے احمد رضا نے ایک تو یہ لکھا ہے ملفوظات کے اندر، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں پیش ہوتی ہیں اور آپ شباسی فرماتے ہیں، اس کا مطلب تو بتائے گا مجھے کیا ہے؟ آپ ہی بتائیے، جو آپ ارے نے یار، سمجھا ہے پھر وہ والی بتائیے۔ بات تیرے احمد رضا نے لکھا تو بتانا اچھا، مجھے۔ اس سے کیا سمجھا آپ نے؟ ارے پھر والی بات کیا سمجھا تو؟ باتوں میں اٹکاتا تو، مجھے اس کا یہ بتا دے، اس کا مطلب کیا ہے، میں وہی سمجھ لوں گا۔ میں آپ کو نہیں اٹکا رہا ہوں، آپ مجھے سمجھا دیجیے، تب بات اچھا، آگے اب ہوگی نا۔ آپ پہ آ گئے یار، ابھی تو تم فوراً تو پہ آ جاتے ہو، پھر آپ پہ آ جاتے ہو، پھر فوراً گالی پہ آ جاتے ہو۔ اچھا آپ بھی بتا دیجیے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ بتائیے نا، آپ نے اعتراض کیا ہے؟ ارے یار، جو وہی تو اعتراض مسئلہ کرتا ہے، دیکھیے، جو اعتراض کرتا ہے ثبوت وہ پیش کرتا ہے، دلیل وہ پیش کرتا ہے، پھر آگے کی بات نہیں میں کہوں گا۔ چلیے، اب مجھے یہ کہنے صاف کا صاف حق لکھا دینا۔ ہے، اب یہ صاف صاف لکھا ہے، آپ کی بیویاں پیش ہوتی ہیں اور آپ شباشی فرماتے ہیں، اس سے آدمی کیا سمجھے گا میرے بھائی؟ کیا سمجھے گا؟ اب میں کہوں گا تو تم کہو گے نعوذ باللہ، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ نہیں، تو شباشی کا آپ مطلب بتا دیں، شباشی کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ ارے یار مفتی صاحب نہ بنو، شباشی کا مطلب ہر کوئی جانتا ہے، رات گزارنا۔ کون؟ رات گزارنا؟ تو ٹھیک ہے، رات گزارنا اگر ہوا تو اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے تمہارے ذہن میں؟ اگر تم سے یوں کہا جاوے کہ تمہاری اماں تمہارے ابا کے پاس پیش ہوتی ہے اور تمہارے ابا شباشی فرماتے ہیں، تو تم اس کا اچھا وہ لوگے یا کیا لوگے تم؟ اچھا، چلیے ابھی 1 منٹ رک جائیے، آپ کی بہن کی شادی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے گھر واپس آئی، ٹھیک ہے، اس نے شباشی کی اور صبح واپس گھر چلی گئی،
उसके साथ जो शब्बाशी हुई है वो उसका क्या मतलब है? तो मुझे ये बता कि आपकी बीवियां पेश होती है? नहीं, एक मिनट, बीवियां पेश होती है, इसका मतलब क्या पेश होती है? देखिए, आप जो समझ रहे हैं वो थोड़ा आप आगे बताइए ना। दूसरी बात ये सुन के तेरे अहमद रजा ने लिखा है कि खंजीर की मनी पाक होती है। अरे एक ही मसले को होता है। अबे भाई मेरी बात सुन, अगर तू ऐसे बात नहीं होती है, ऐसे बात नहीं होती है, ऐसे बिल्कुल बात नहीं होती है। मेरी बात सुन, मैंने बहस के लिए फोन नहीं करा, मसले को मैंने सिर्फ इसलिए फोन करा है कि ये हरकतें तू छोड़ दे मेरे भाई। हजरात, मैं तो तसल्ली से बात कर रहा हूँ, पर ये जनाब से बात कर रहा हूँ कि बात कर रहे हैं मगर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। फोन मत काटियो। तो जनाब एक मसले को हल कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़े। आपने क्या माना लिया है? अब तू इसका पूरी तफसील बता दे, मैं उसको वही मान लूंगा, तो मेरी बात छोड़ दे। एतराज करने वाला अपना पूरा एतराज बयान करे, फिर इंशाल्लाह आगे जवाब मैं दूंगा। अबे वो कीड़े के अंदर मत घुस, मैंने तुझे बता दिया ना कि आपकी बीवियां पेश होती है। किस तरह की जो है जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? वह गाली तो नहीं बगी तुझे? कीड़ा वेड़ा बकान रहे हो, क्या कर रहे हो? अबे बरेलवियत के मैं तुझे फिर वही कहूंगा, मैं तुझे गाली तो नहीं बगी मैंने अभी। मैं तुझसे कह रहा हूँ में से बात मत निकाल, तू ये शब्बाशी का माना बताइए आप पहले, उसके बाद में बात होगी। अबे इतना बड़ा मुफ्ती ना बने, शब्बाशी का मतलब जानता नहीं है कि रात गुजारना होती है। रात गुजारना होगा, इसके अलावा और क्या है? रात तो कोई भी किसी के साथ गुजार सकता है, सिर्फ रात गुजारना मैंने मान लिया। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा और कुछ है तुम्हारे जहन में? अगर और कुछ है तो तू अपने जहन की तो बता, तेरे दिमाग में क्या कीड़ा है इसके ख्याल से, तू तो बता मेरे भाई। अच्छा बता, तू बता, मैं तेरी सुनना चाह रहा हूँ। अगर तुम्हारा कुछ और ऐतराज हो वो भी कहो इंशाल्लाह। अगर तुम्हारा कुछ और ऐतराज है उसके अलावा यार हसन, इस ऐतराज को खत्म कर। नहीं बात होगी, आगे बात बढ़ेगी। मेरी बात तो सुन, तू जवाब दियो, लेकिन लोगों को फिक्र कर, वो नमाज की तरफ आए। लोगों को फिक्र कर, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर आए, वो तहज्जुद पर आए, वो कैसे जो है अमल की तरफ आए। यार ये तू क्यों लगा पड़ा है टांग खिंचाई में कि देखिए इस देवबंदी को, देखिए इस बरेलवी को, क्यों ऐसी गंदी हरकतें कर रहा भाई? ये नबी की सुन्नत नहीं है। अच्छा, किसने भेजा? सुन्नत नहीं है। अच्छा, तू मरकज में रहता है क्या? तेरे घर के पीछे रहता हूँ, मरकज में रहता है। तेरे को और कुछ काम ही नहीं है? मरकज में रहता है, देवबंदी रहता है। मरकज में भी मेरे नाम का जो है जलजला है, दहशत। तुझे तो कोई पूछता भी नहीं है मरकज में जलजला है, क्यों कॉल किया? मूली है, सिर्फ इसलिए फोन करा है कि तू ये गंदी हरकतें करता है ना, तू यूट्यूब पर डाल करके। तुम्हारी बेइज्जती जो हो रही है इसलिए कॉल किया ना, तुझको अल्लाह जिसकी चाहे उसकी बेइज्जती होती है, तो जैसे खबीस के करने से किसी की बेइज्जती नहीं होती। जबान इस्तेमाल कर रहा है। मैंने तुझे पहले भी समझाया था, ऐसी हरकतें मत करा करो। ये तू जो टाइटल डालता है ना, देख शब्बाशी पर चल वापस। शब्बाशी से क्या मतलब लिया? जवाब दे। शब्बाशी से क्या मतलब लिया? अबे खबीस आगे जवाब देना, तू मुझसे पूछ रहा है, तू क्या ले रहा है उसका? हम भी अपनी कब्रों में जिंदा हैं या नहीं? अबे जिंदा है, तू सिर्फ इसका जवाब दे जो पूछ रहा हूँ। आगे बात मत भड़का। एक मिनट। हाँ, जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, जो शहीद होते हैं, हाँ, वो जिंदा है माज़अल्ला या मुर्दा? जिंदा है या मुर्दा माज़अल्ला? हमारा अकीदा है जिंदा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिंदा है। अच्छा, अगर उनकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है और रात अगर बिताते हैं, तो इसमें तुम्हारा क्या ऐतराज है? उसको जरा पेश करें, नुक्ता नजर पेश करें। ऐतराज ये है, ये कौन से कुरान और कौन सी हदीस से साबित है, ये बता मुझे। अच्छा, तो आला हजरत ने किसका कौल नकल किया, जरा बताए। मुझे नहीं पता, तेरे आला हजरत ने लिखा है, कहाँ से साबित करके लिखा, तो ये इसका जवाब दे। आधी अधूरी बात पढ़ के आए और तुमको अपने घर की खबर नहीं है। चलिए जवाब तो दे, जमालुल औलिया। अबे मेरे भाई इसका जवाब तो दे, क्यों लिखा है? हाँ, किताब उठाइए, जमालुल औलिया देवबंदियों की किताब है, उसमें लिखा है, हम बिस्तरी का नाम भी लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबियां पेश होती हैं, शब्बाशी करते हैं और उनके साथ जो है हम बिस्तरी भी करते हैं। ये तक अल्फाज लिखा है तुम्हारे देवबंदियों ने। मगर आला हजरत देख भाई, मैं बात को बिल्कुल तोल के करता हूँ। अगर ये हवाला तुम्हारी किताब में सुन, अगर ये तुम्हारी किताब में हवाला मौजूद ना हो तो जो चाहो सजा दो। आला हजरत ने नहीं लिखा हम बिस्तरी के लिए। अरे भाई, अगर नहीं हुआ तो गुलामी करूंगा तेरी। दूसरी बात भागना ही नहीं, मैं दूसरी तरफ जाना ही नहीं चाहता मैं कहीं। तूने शब्बाशी को छेड़ा, सुन, इधर उधर जाना ही नहीं है मुझे। तुमने शब्बाशी पर एतराज किया और तुमने इससे गलत माना लेने की कोशिश की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने तो वो नहीं लिखा है, मगर तुम्हारे देवबंदियों ने ये लिखा। अबे भाई, आला हजरत मेरी बात जो लिखा है, बकवास बिल्कुल बंद। तुम्हारे
बिल्कुल खामोश। जब लीजिए जनाब हजरात, मैंने इसको मौका दिया था ये लो हजरात, कि तू अपना हवाला पेश कर, तू एतराज पेश कर, इसने एतराज नहीं किया। मगर मैं एतराज कर रहा हूँ तो ये कह रहा नहीं हमारी किताबों में, मैं कहता हूँ अगर जिसकी किताबों में ना हो तो तमाम गुलामी के लिए मैं तैयार हूँ। फोन मत काट दियो खबीस की औलाद, फोन मत काट दियो। बताइए, ये जला फोन मत काट शैतान की दियो, जबान है, बताइए। फोन मत काट दियो बेटा, अगर बाप की औलाद है अपनी। देख मैं तुझे इससे ज्यादा कुछ कहूँ अब ये मेरी मुझे बात अच्छा सुन, नहीं लगता। मेरी ठीक बात है? सुन, मैं ऐसे शैतानों से बात नहीं करता। मेरी ठीक बात है? सुन ले, शैतान की औलाद, फोन मत काटियो, फोन मत काट। अबे नस्ल की नाजायज औलाद, तुम्हें यही सिखाया जाता है। अगर तू किसी भी मसलक में अगर तू चाहेगा कमी निकाल देगा। कमी क्यों निकाल रहा है? हर मसलक के अंदर कुछ न कुछ खामियां हैं, तुम्हारे अंदर कमी है। तूने जो आला हजरत के ऊपर एतराज पेश किया ना, वो आला हजरत के ऊपर आला एतराज हजरत ही ने तो नहीं ये है। भी लिखा है कि स्वर्ग की मनी पाक होती है, ये कहाँ से साबित है? खबीस की औलाद, आला हजरत की पूरी इबारत पढ़ के दिखा। वो उसने कौवे की इबारत भी लिखी है, तुम कौवे की देवबंदी के निकालते हो, मैं तेरी आला हजरत की भेज दूंगा। चल कौवे के बारे में। अच्छा चल बोल क्या है? मैं तेरे व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ ना। नहीं व्हाट्सएप पे मत भेज। नहीं तेरी बात मैं तुझे नहीं बता सकता, मैं तुझे क्या तेरी व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे तू जवाब दे मुझे। दुनिया लेकिन तू चाहता है यूट्यूब से पैसा कमाना, जो हम सुन्नी हंजी बरेली। अबे खबीस की औलाद, तू कुछ भी नहीं है, बदतमीजी नहीं, कुछ भी नहीं है, बदतमीजी सिर्फ बिल्कुल यूट्यूब से पैसे कमा रहा है तू। जनाब इसकी जरा खबर लीजिए, जितने सिर्फ हमारी जमात से भाई हैं। अबे मेरे पास तेरे बरेली के फोन आते हैं, बहुत फोन आते हैं बेटा। ये शैतान बदतमीजी कर रहा है और खाली तू नंबर डालेगा, मुझे पता है फोन आएंगे। खाली हवा में बात औलाद है, मेरा नंबर ब्लॉक मत करियो, तू नंबर ब्लॉक कर देता हर बार, नंबर ब्लॉक मत करियो। देख सुन, ऐसे लोगों से मैं सरदर्दी नहीं करता, ठीक है? सरदर्दी तू देवबंदी को खामी निकाल रहा है। अहमद रजा की तू मानने को राजी नहीं है। करने के लिए तैयार हूँ, तो तू बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? तूने जिस वजह से कॉल किया है, बात करने के लिए कॉल किया ना, तो बात कर। बात कर रहा हूँ ना, अब मेरी बात सुनेगा। पूरा जवाब दे। तूने कौवे का नाम लिया और मनी का नाम लिया, चल आला हजरत की इबारत पेश कर, क्या है उसमें? तेरे अहमद रजा ने मनी को और सुअर को पाक बतलाया है, उसकी पूरी हकीकत पेश कर। आला हजरत ने लिखा क्या है इबारत पर? वो सुन, मेरे पास पूरी वो किताब खुली रखी है, किताब खोल के जब तुझे व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। हो गया। तेरे अहमद रजा ने कौवे के बारे में भी कहा है, कौवा खाना जायज है, ये भी तेरे को भेज दूंगा। तेरे अहमद रजा ने वसल्लम को नौजुबिल्लाह बीवियां पेश होती है, इस बीवियां पेश हो अल्फाज से तू बात को घुमा रहा है कहाँ से कहाँ। अगर तुझसे आ जावे तेरी अम्मा पेश होती है तो तुम्हारे अब्बा को एक बात करो, बुरा मत मानियो, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। इसमें कौन सी हरत की बात है कि बीवियां पेश होती हैं? अरे क्या हो गया तो? अबे यार ये कौन सी कहाँ से साबित है? तो उसका एतराज रखना, तो जो है खुल के एतराज रख भाई। एतराज रखता रहो, ये साबित कहाँ से है? हजरत ने तो वो चीज नहीं लिखी जो तेरे जहन में गंदगी है, ठीक है, मगर तेरे देवबंदियों ने वो गंदगी लिखी है। मगर इसमें कोई हद की बात नहीं है। देवबंदी बरेलवी खत्म कर दे तू, और तुझे करना है तो बैठ के मुनाजरा कराकर यूट्यूब पे गंदी हरकतें मत करा कर। हिम्मत नहीं है जो तू बात कर सके मुझसे, मगर मैं ऐसे शैतानों से बात करना पसंद नहीं करता ना, जो खाली कुत्ते खबीस की औलाद। जब तेरी मैया मर रही है तो तू बोल रहा है कि मैं बात करना पसंद नहीं करता, और तू जब जलील करके और तू गुस्सा खाना वो बात लिख करके यूट्यूब पे डाल देता है। जलील तो तुम हो ही, मैं जलील क्या करूंगा? तुम तो खुद जलील सिर्फ वो होता है जिसको अल्लाह चाहता है। तेरे तूने खुद करने से कोई जलील नहीं होता। खबीस की औलाद, तूने खुद ही कबूल कर लिया। अगर अपनी बाप की औलाद है तो मेरा नंबर ब्लॉक मत करियो, ये ध्यान रख लियो। अबे मैं कॉल करता रहूंगा, मैं कॉल करता रहूंगा, हंसे मत है। मेरे दोस्त तुझसे बात कर लेंगे, ठीक है? अब तू दोस्त बोल रहा है, मेरे दोस्त बोल रहा है, तेरे दोस्त बोल रहा है, तेरे लिए मेरी दोस्त काफी है। अब तू दोस्त बोल रहा है, तू अबे हराम की औलाद सुधर जा। अबे शैतान के बच्चे, तुझे थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तेरे लिए मेरी दोस्ती काफी है। तेरे दोस्त, अबे तू कुछ नहीं करेगा, तू यूट्यूब पे नंबर डालेगा, तू अपने चमचों को बोलेगा फोन करने के लिए। बिल्कुल कितने खबीसों से मेरी बात करी तुझे पता भी नहीं है बेटा। भी तेरा नंबर मैं डालूंगा, वो खुद ही कॉल कर लेंगे, ठीक है? अरे मेरे लाल, तेरे चेले मुझे रोज फोन करते हैं, तू डाल दे। लेकिन तुझे मैं समझा रहा हूँ, ये हरकतें मत कर देवबंदी बरेलवी। तू अपनी नमाजों की फिक्र कर। तुझे तरस आता है देवबंदी पर ना? तरस ही नहीं आता, तरस ही आता था कि तू उम्मत के अंदर तोड़ पैदा कर रहा है। अगर तुझे जोड़ पढ़ना, सुन अगर तू जोड़ तेरी बातों में खुद तोड़ है, तेरी बातों में खुद तोड़ है। तूने अभी तक कुत्ते की तरह भौंकने का अलावा करा क्या, ये बता दे। मैं तो तसल्ली से बात करना चाहता हूँ, प्यार से बात करना चाहता हूँ, पर सुन मेरी बात सुन। अगर जोड़ पैदा करना चाहेगा तो जोड़ वाली बात करेगा ना तू। हाँ, तू टाइटल लिख देता है। बोलो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बोलो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल है। बोलो क्या चीज? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने गैब का इल्म अता किया है। बोलो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार बख्शा है। बोलो फिर कहेगा ऐसे कह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर हाजिर नाजिर है। बोलो हुजूर हाजिर नाजिर है, कहाँ पर है हाजिर नाजिर?
कहाँ पर है हाजिर नाजिर? ये बताना कहाँ पर है हाजिर नाजिर? आपका अकीदा क्या है? अबे वो पूरे अपनी बात के जवाब को पूरा कर। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जवाब दूंगा। हाजिर नाजिर है कहाँ पर है हाजिर नाजिर? एक मिनट, आपका अकीदा क्या है हाजिर और नाजिर के? अबे वो फिर तू आगे बढ़ रहा, फिर मैं कुछ कहूँगा तू पहले आपसे एक मिनट, पहले आपसे सुन पहले लो, अपनी बात पूरी कर। हाजिर नाजिर कहाँ पर है? मैं ऐसे कहता ही नहीं ना, मेरी आदत क्या आप मानते हो ना हाजिर नाजिर? हाँ, मैं हाजिर नाजिर कैसे है ये बताओ। पहले तू बता दे तेरा अकीदा है हाजिर नाजिर कैसे मानता है तो बता ना, फिर मैं जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ आप मानते हो या नहीं, बस हाँ ना में जवाब। हाजिर नाजिर कैसे मानते हो ये बता। आप मानते हो या नहीं? स्टेप तेरे घर में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्हम्दुलिल्लाह वो बात की बात है, अभी बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? तुम्हारे घर से साबित करूंगा। बात की बात है, तुम्हारे घर से साबित करूंगा। नूर हसन देख मेरी बात सुन मेरे भाई, मैंने तुझे ना तो भाई मत कर, पहले फोन कराया, पहले हाना में जवाब दे दे, तू मानता है कि नहीं मानता? अबे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ना माने और आपके जो इल्म गैब को न माने, और सुन पहले पूरी बात सुनो, बकवास मत करा कर बीच में। मेरे बात सुन, लीजिए जनाब, आगे औकात पे लीजिए जनाब, पहले बात सुन हदीस की औलाद। लीजिए जनाब, तू साले यही करके तो यूट्यूब पे डाल देगा बस। लीजिए जनाब अब जवाब सुनेगा? सुना तेरे में हिम्मत है सुनने की? हाँ सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो न माने, आपके इल्म गैब को जो न माने, आपने जो कहा है उसको न माने, वो ईमान से खारिज है। लेकिन तेरे में समझने का फर्क है। तेरी गंदगी के अंदर जो कीड़ा भरा हुआ है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना गैब इल्म गैब अल्लाह ने दिया था, इतना इल्म गैब है। हर चीज का अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं है, इस चीज का हमारा अकीदा है, अब भी है। अच्छा, ये बताइए कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करे वो मुसलमान है या काफिर? अबे तू सवाल और जवाब है, काफिर है, खबीस हो तो हर कोई जानता है, मुसलमान जानता है। रशीद अहमद गंगोही की किताब उठा, फतावा रशीदिया, उसने इनकार किया। कुछ नहीं लगता, तुम जैसे खबीस हो ना, बात बना के नहीं हुआ तो गुलामी करूंगा। अबे गुलामी तू नहीं करने का, तू जैसा किसी की गुलामी करने के लायक नहीं है। करूंगा। तू जैसा कभी किसी की गुलामी करने के लायक नहीं है। तुमने मौलवी जो उम्मत के अंदर तोड़ पैदा करता कर दिया, जो उम्मत के अंदर तोड़ पैदा करता है, उससे बड़ा कोई खबीस नहीं है। किसी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया। अबे बेटा तुझे तेरा पाला नहीं पड़ा किसी देवबंदी से, तू यूट्यूब पे मटकता रहता है बस। हंसने हिजरे की तरह तू यूट्यूब पे मस्केगा। मुझे अफसोस इस बात का, तो यूट्यूब पे मटकता है बस, अपने आप को हीरो बन के दिखाता है। तेरी औकात नहीं है तू किसी से कर ले। अपने बड़े से बड़े आलिम को कभी किसी मैदान में इकट्ठा कर चल। मैं बात करूंगा तेरे बड़े से बड़े मुफ्ती से, और हम अकीदा भी सुन, कौन से अकीदे में बात करेगा इंशाल्लाह साबित करूंगा। अच्छा तू एक बात बता, नमाज में कितने वाजिब है? ये सब छोड़िए, बात की बात है, ठीक है? ये छोड़िए, नमाज में कितने फर्ज है बताना। तू नमाज पढ़ता है, बता नमाज में कितने फर्ज है? फिर वही बात, चल बता तू कितने फर्ज है? अबे अब मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ। एक मिनट, तेरा फर्ज है, बता अंदर कितने बाहर कितने, बोल। अबे वो बाहर अंदर, मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ। अरे अब वाजिब आ गया, फर्ज बोल रहा था तू अभी। फर्ज भी बोल रहा हूँ, वाजिब भी, पहले तू जवाब देगा। पहले फर्जों पे बात कर, उसके बाद वाजिब पे जाना, ठीक है? फर्ज बता कितने और कितने। मैंने बोला तेरा फर्ज है, मगर ये तू अब बता के अंदर कितने बाहर कितने, बोल। सवाल किसने पूछा? तूने पूछा, मैंने पूछा? तुम्हें मालूम ही नहीं रहता है, इसीलिए तो मैंने सवाल किया है। इसकी औलाद, जब मुझे इतना मालूम है तेरा है, जब मुझे इतना मालूम है कि तेरा है, तो अब मुझे ये भी मालूम होगा ना। तू ये बता दे अंदर का छठा कौन सा है? चल मैं तेरी बात तेरा के तेरा कबूल कर लूंगा, बोल। मैं तुझसे ये कह रहा हूँ। अबे हड़बड़ा मत ना, सवाल मैंने पूछा है। लीजिए जनाब हजरात, लीजिए जनाब, आगे औकात पर लीजिए जनाब कि कितने फर्ज हैं, मैंने आगे औकात पर लीजिए जनाब, लीजिए जनाब, आगे औकात पर पूरा सवाल का जवाब देना। लीजिए जनाब, यही औकात है उनकी, यही आ रही है क्या? अबे पानी वानी पी ले, आराम से बात कर, पानी पी ले, कोई बात नहीं, घबरा मत। बहुत गुस्से में लग रहा है तू, पहले सवाल का जवाब दे। मेरे गुस्सा ये है कि तू साले उम्मत के अंदर तोड़ पैदा कर रहा है, अंदाज से बात करने वाला इंसान, तू उम्मत के अंदर तोड़ पैदा कर रहा है यूट्यूब पे पैसा कमाने के चक्कर में। नहीं, बिल्कुल झूठ, तेरा इल्जाम झूठा है। झूठ सच्चा है, तो यूट्यूब पे क्यों डालता है? झूठा है, तूने अपनी माँ का दूध पिया था, मुनाजरा कर बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला अखलाक के साथ कर, लोग तेरी औकात को देखेंगे। क्या मेरे को बता, तू डालेगा, तू बाद में आएगा, डाल दे बेटा, कोई चीज वो नहीं है। तेरे खबीसों से मेरी बात होती रहती है। इतने दिनों जमात में जाके क्या सीखा है? यही सीखा कि तुझ जैसे के साथ कैसे पेश आना चाहिए, तुझ जैसे खबीस के साथ। लीजिए जनाब हजरात, किस लीजिए जनाब, जबान इस्तेमाल कर रहा, मैं भी बहुत कुछ सुन लीजिए, लीजिए जनाब, इसकी भी सुन लीजिए, मगर मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। तू ये पता तू बदतमीज आदमी है, बर्दाश्त क्यों कर रहा है? क्योंकि तू यूट्यूब पर डालेगा, डाल दे,
अबे बेटा हंस मत, तूने जवाब दिया नहीं है मुझसे तूने ये भी जवाब नहीं दिया वाजिब कितना है? मेरे बुजुर्ग मना करते हैं कि नूर हसन भाई तो तूने आपको कितनी गाली गाली बके तो आप बकी है सुन तूने? लो, बर्दाश्त कर लो, ठीक है? आप कुछ ना कहो, तूने तो मुझे यूट्यूब मना में करते कितनी हैं गाली फिर बकी भी है? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो गाली तो तूने बहुत बकी है यूट्यूब में। तेरी बातों को बर्दाश्त कर रहा हूँ बेटा, गाली तो तूने बहुत बकी है, हर यूट्यूब में गाली बकी है तूने। तू कौन से बुजुर्ग की बात मानता है तू? अरे भाई तभी तो मैं तुझे कुछ नहीं कर रहा, घूट पी रहा हूँ। अबे तूने कितनी गालियां बकी है? तू कौन से बुजुर्ग की बात मानता है? मुझे ये जवाब देना। तू घूट ही पी सकता क्योंकि तू यूट्यूब पर है, फोन पे बात कर रहा है। तू आमने सामने नहीं है, तू आमने सामने होता तेरी पतलून गीली कर देता। बात करेगा? अच्छा मुझे मारेगा तू? और लड़ाई की तो बात ही नहीं कर रहा, ये नबी की सुन्नत नहीं है। कभी मारेगा? अबे नबी की सुन्नत नहीं है, ये नबी की सुन्नत नहीं है, ये नबी की सुन्नत नहीं है। क्या नबी की सुन्नत है अखलाक के साथ दावत देना। अबे तूने तो कहा कि तू मेरे सामने होता तो मारने का तूने अल्फाज इस्तेमाल किया ना? बेटा इसमें रिकॉर्ड है, मारने का नाम नहीं ला। मैंने कहा तेरी पतलून गीली हो जाएगी सामने आएगा तो। समझ गया? तू रामपुर में फुदक रहा है ना, वहीं की वहीं तू और कहीं फुदक भी नहीं सकता। एक मिनट, और तू यूट्यूब पर फुदक रहा है, रामपुर में यूट्यूब से निकल के सुन, तेरे रामपुर में उसे कॉल करके बता कि नूर हसन नाम का एक बंदा है रामपुर में, उससे बात करो जाके, बोल। तो अभी सुनेगा इंशाल्लाह मैं किले के मैदान में बात करूंगा उससे। चल तो अभी रुकियो, फिर फोन मत काटियो। ठीक है, लाइन पे ले। तेरा बाप ये बरेलवी है, बरेलवी से बात कराऊंगा, बात करियो। शैतान के पुत्र, अपने मौलवी से बात करा। नहीं मैं बात कराऊंगा तो ये जवाब देगा, बरेलवी है। झूठ बोलना बंद कर, बरेलवी झूठ है। बात करने से पता लग जाएगा सब। तू बात करेगा, फोन नहीं काटेगा। ला निकाल, होल्ड कर फोन को। ठीक है, कॉल काट कर नहीं जाना। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please. हेलो जी, बड़ी देर में नंबर लगा भाई। नूर हसन मिल नहीं रहा था, फोन उठा लिया है, लेकिन वो बिजी है इस टाइम, वो चालू है, फोन पर है। अच्छा ठीक है, बात कराइए। वो अब जैसे ही वो हेलो करेगा तो बात कर लियो, लेकिन मेरी बात जब तक वो बात नहीं कर रहा। नहीं बात कराइए, मैं किसी काम में मसरूफ हूँ, फिर भी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। नहीं मसरूफ तो मैं भी हूँ, खाली खलवा हम भी नहीं है तुम्हारी तरह, लेकिन मेरी बात सुनो। वो अभी जब हेलो बोलेंगे तो बात करना, लेकिन मेरी थोड़ी सी बात सुन लोगे आप? जल्दी बात कराओ। हाँ करा रहा हूँ मैं, थोड़ी सी बात मेरी सुन लो। उन्हीं से बात कराओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। क्या वो खांसी हो रही क्या? बात कराओ, जल्दी बात कराओ। नजला हो गया क्या? अरे यार बात कराओ ना तुम उधर। मतलब सबर तो करो, अभी सबर तो करो, अभी वो हेलो बोलेंगे, बिजी है थोड़ा सा, 1 मिनट भी है। नूर हसन ड्राइवर, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इसलिए तुम्हें हर वक्त गंदगी नज़र आती है चारों तरफ। मुफ्ती अनस साहब ने बहुत बेहतरीन और बहुत सवाब का काम किया है। जो ऐसी लड़की से शादी करके ऐसी लड़की से शादी करना बहुत बड़ा सवाब है। तुम लोगों के दिमाग में गोबर भरा है तो तुम्हें गोबर नज़र आता है, चारों तरफ गंदगी नज़र आती है। समझ में आई? तुम्हारी गलती नहीं है भाई ये। जनाब हजरात, सुनी आपने इस जाहिल आज़म की गुफ्तगू, जाहिल इब्न अबू जहल। ये देवबंदियों की यही औकात है, इसी तरह के देवबंदियों में आलिम पैदा होते हैं। ये जाहिल अशरफ थानवी के नापाक पिल्ले इसी तरह की बकवास करके चले जाते हैं।